Hello my dear friends, in this session we are going to analyze our VARS, that means vapor absorption refrigeration system. We are going to analyze our VARS system with full cycle explanation. That means here we are going to study about VARS system. Also we are going to study about VARS cycle, and at last we are going to analyze our VARS COP calculation also. So my dear friends, in this session we are going to work over this system, this cycle and this COP calculation for VARS system. Okay, for VARS system. So let's start this session. My dear friends, first of all, if you are able to analyze this VARS system, so my dear friends, what is your VARS system? सबसे पहली बात कि what is your VARS system? Your VARS system is nothing but vapor refrigeration, sorry, vapor absorption, vapor absorption refrigeration system. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे वेपर के फॉर्म में आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, ओके, रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, जो कि आपका रेफ्रिजरेंट होगा अमोनिया, और इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? इसको एब्जॉर्ब करेगा वाटर। वाटर यहाँ पे वर्क कैसे करेगा? वर्क एज अ सॉल्वेंट और एब्जॉर्बर। तो इस तरीके से ये दो सिस्टम का यूज करके माय डियर फ्रेंड्स, ये वाटर NH3 प्लस वाटर का यूज करके, दैट मीन्स NH3 प्लस वाटर का यूज करके यहाँ पे ये सिस्टम में कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास दो सिस्टम है, एक अमोनिया है, एक वाटर है, और ये दोनों अमोनिया और वाटर आपस में स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, और यही पूरे के पूरे हमारे साइकिल में सर्कुलेट करेंगे। अब टॉपिक ये आता है कि हमारा साइकिल है क्या चीज, एंड कहाँ ये अमोनिया एंड वाटर फ्लो करेंगे, कहाँ फ्लो करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट आवर कूलिंग स्पेस, and this cooling space is nothing but your storage space. Okay, storage space where T lower gonna be maintained. Is it right now? T lower gonna be maintained. Okay, and this is your atmosphere, this is your surrounding, or your atmosphere, where T higher or T ambient that means T naught is present, that means approx 27 degrees centigrade, and here we want to produce minus 8 degrees centigrade temperature. So these two surrounding between these two surrounding, how we are able to create this amount of temperature, and how we are able to maintain this cooling effect? How? So by installation of, so my dear friends, by installation of some components. First component is your, the very first component is your nothing but evaporator. This is your evaporator, and after that we have to install here absorber. Okay, absorber. Okay, and after that we have to install a pump at place of compressor. तो यहाँ पे कंप्रेसर नहीं, पंप इंस्टॉल करेंगे। ओके,
from where work input gonna be happen. Okay, and again here you need to apply uh, another component which is named as generator. मैं सारे के सारे कंपोनेंट का वर्किंग भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना है कंडेंसर को, जहां से हीट रिजेक्ट होगी। हीट कहाँ रिजेक्ट होगी? हीट रिजेक्ट होगी आपके सराउंडिंग में। सराउंडिंग में हीट ये क्यूआर रिजेक्ट होगी और इस इवापोरेटर के थ्रू ये क्यूई आपका मेंटेन किया जाएगा। दैट मीन्स आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को क्रिएट किया जाएगा, जिसके कारण ये कूलिंग इफेक्ट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, here after condenser you need to install your throttle valve. You need to install your throttle valve. This is your throttle valve. Okay, this is your throttle valve where drastically temperature gonna be decrease. Okay, so this is your cycle, this is your standard cycle. एंड यहाँ जनरेटर से एब्जॉर्बर की तरफ हम कुछ भेजते हैं। हम क्या भेजते हैं? हम वाटर को भेजते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब वाटर कहाँ से आया और एक्चुअली इस एरो में क्या फ्लो कर रहा है? टॉपिक इज दैट। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एब्जॉर्बर में फुली ये एब्जॉर्बर यहाँ पूरा का पूरा ये वाटर रहता है, H2O रहता है। यहाँ पूरा का पूरा आपका H2O रहता है। किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वेरी फर्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कूलिंग स्पेस या फिर कूलिंग इफेक्ट को जनरेट करना, तो उसके लिए इस स्टोरेज स्पेस से आपको हीट बाहर फेंकना पड़ेगा। तो हीट बाहर खींचने के लिए आपने लगाया इवापोरेटर। इवापोरेटर इज वर्क लाइक है हीट एक्सचेंजर। इस इवापोरेटर के थ्रू सारा का सारा हीट आया। इस इवापोरेटर में चाहिए पूरे पूरे पाइप में क्या फ्लो कर रहा है? यहाँ पूरे पूरे पाइप में आपका अमोनिया अमोनिया इन वेपर फॉर्म फ्लो कर रहा है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम है। इज इट राइट? जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम है एंड बहुत ही कम प्रेशर पे ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इवापोरेटर इज योर हीट एक्सचेंजर and working at constant pressure. Working at constant pressure. So from here you can extract your heat and आपका ये जो अमोनिया है जो वेपर फॉर्म में है, ये अगेन इस अमोनिया का हल्का सा टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। यहाँ पे आपके अमोनिया का हल्का सा टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, बट ये वेपर फॉर्म में ही होगा एंड एट वेरी लो प्रेशर पे होगा। इज इट राइट? अब ये अमोनिया यहाँ आएगा। ठीक है, ये अमोनिया इज वर्क एज अ रेफ्रिजरेंट। ये अमोनिया वाटर के पास आएगा। वाटर इज वर्क एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा अमोनिया को और यहाँ पे अमोनिया और वाटर मिलके स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे। इस स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन के कारण, ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन के कारण ये आपका अमोनिया का जो टेम्परेचर जितना बढ़ा था, वो पूरा का पूरा वाटर अपने अंदर ले लेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में? यहाँ पे एक्चुअली में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हीट का बाहर निकलना। हीट का बाहर निकलना, इस डेल्टा टी का बाहर निकलना। ठीक है, बाहर निकलना मतलब टेम्परेचर सिस्टम का डाउन हो जाना। दैट मीन्स क्यू का बाहर निकलना, क्यू का रिजेक्ट होना। दैट मीन्स ये रेफ्रिजरेंट, ये जो अमोनिया है, इसमें जो हीट बढ़ी है, कौन सी हीट बढ़ी है? ये क्यूई हीट जो एब्जॉर्ब करके अपनी हीट को जो इसने इसने अपनी हीट को जो बढ़ाया था, यहाँ पे वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन बन के ये अपने हीट को रिजेक्ट कर देगा। हीट को रिजेक्ट करने के कारण इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और डाउन प्रेशर पे तो ये वर्क कर ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, मतलब हीट बाहर निकल जाएगा इस रेफ्रिजरेंट से और ये वाटर में हीट चला जाएगा। ठीक है, वाटर में हीट चला जाएगा। ठीक है, और वाटर में हीट जाके अगेन ये हीट कहाँ जाएगा? ये एम्बियंट टेम्परेचर पे चला जाएगा। इस एम्बियंट टेम्परेचर, इस सराउंडिंग में ये पूरा का पूरा हीट चला जाएगा। अगेन अगेन इस अमोनिया और वाटर के स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन को
हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अमोनिया पूरा का पूरा जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा जब वाटर में ये मिक्स हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन बना लेगा, तो अब यहाँ पे अमोनिया किस फॉर्म में होगा, अब यहाँ से अमोनिया एंड वाटर फ्लो करेंगे और ये किस फॉर्म में रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। So due to this liquid form of your refrigerant, your ammonia with respect to, with water, due to this liquid form के होने के कारण आपको कंप्रेसर नहीं यूज करना है, आपको क्या यूज करना है, पंप यूज करना है। Why? Because for open flow system, work done, work input or work output gonna be represented by minus V dP, and due to this liquid purpose, here the specific volume of liquid is very low with respect to gas। तो यहाँ पे प्योरली लिक्विड है, गैस नहीं है, तो हमें वर्क इनपुट बहुत कम देना है। हमारा टारगेट क्या है, वर्क इनपुट बहुत कम देना है। दैट मीन्स हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपका लिक्विड है और आपको वर्क इनपुट बहुत कम देना है, तो उसके लिए आप पंप इंस्टॉल करिए। अगर आप कंप्रेसर इंस्टॉल करते हो तो कंप्रेसर कभी भी लिक्विड के लिए वर्क नहीं करता, वो गैसेस के लिए वर्क करता है, और गैसेस जहाँ लेके जाओगे तो आपको वर्क इनपुट क्या करना पड़ेगा, वर्क इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज गैसेस का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपको वर्क इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे ये आपका स्ट्रॉन्ग एक्वा सोल्यूशन है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो आपको पंप यूज करना है, ठीक है, कंप्रेसर नहीं यूज करना है। कंप्रेसर यूज करोगे तो वर्क इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा। तो ड्यू टू दिस वर्क इनपुट कंस्ट्रेंट हमें पंप यूज करना है। पंप के कारण अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एक्वस सॉल्यूशन है NH3 का प्लस वाटर का, इस स्ट्रॉन्ग एक्वस सॉल्यूशन का क्या होगा, प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू दिस पंप वर्क, एंड साथ ही साथ टेम्परेचर भी इसका काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इज इट राइट? अब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ योर अमोनिया एंड वाटर इस जनरेटर में जाएंगे। यहाँ से हम अगेन हीट को ऐड करेंगे। हीट को ऐड कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ सन एनर्जी। सन की एनर्जी से हम हीट को ऐड करेंगे, ठीक है। इस क्यूजी हीट को हम इनलेट कराएंगे। दैट मीन्स इस सिस्टम का टेम्परेचर अब टीजी हो चुका होगा, ठीक है। हीट को इनलेट कराने से अब क्या होगा, यहाँ पे जो आपका अमोनिया प्लस वाटर का स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन है, वो उसका प्रेशर बढ़ चुका है, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ये टीजी टेम्परेचर और ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे सन के थ्रू कैसे एनर्जी आप भेज रहे हो, ये क्यूजी के फॉर्मेट में आप हीट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस सिस्टम का जो टेम्परेचर टीजी हो जा रहा है। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल सोलर पैनल, यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल सोलर पैनल, ठीक है। तो सोलर पैनल के थ्रू भी आप इस सिस्टम का हीट बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण प्रेशर तो उतना ही रहेगा, प्रेशर यहाँ पे उतना ही रहेगा, यहाँ पे आपके अमोनिया एंड वाटर का प्रेशर उतना ही रहेगा जितना कि यहाँ पे था, बट टेम्परेचर अब बढ़ जाएगा, क्योंकि जनरेटर हमने एक्स्ट्रा हीट और ऐड किया है। और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण हीट रिजेक्शन काफी क्विकली होगा। अब कंडेंसर्स में टेम्परेचर के बढ़ने के कारण टी प्लस टीजी के इंक्रीज हो जाने के कारण, ये एक्स्ट्रा टीजी इंक्रीज हो जाने के कारण ड्यू टू दिस जनरेटर इफेक्ट, अब ये क्यूआर काफी रेपिडली होगा, ठीक है। क्यूआर रेपिडली होने के कारण अब यहाँ पे जो अमोनिया आपका होगा, अमोनिया NH3 प्लस H2O, ये अमोनिया जो होगा, ओके। तो अब यहाँ पे ये वाटर नहीं कंसीडर किया जाएगा, और यहाँ पे भी ये वाटर नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे वन थिंग शुड बी नोटेड दैट यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया है कि केवल हमें ये पंप यूज करने के लिए ही हमने वाटर दिया था, जिसके कारण वर्क इनपुट बहुत कम देना पड़ा, ठीक है। अब आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ लिक्विड में है, अब ये यहाँ पे गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अब सारे के सारे वाटर को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और अगेन एब्जॉर्बर में हम भेज देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा केवल और केवल क्या रहेगा, अमोनिया रहेगा, ठीक है। और अमोनिया किस फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में। क्यों वेपर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ड्यू टू दिस जनरेटर इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ चुका है, वो वेपर में फेज को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपका अमोनिया वेपर फॉर्म में होगा, सॉरी लिक्विड फॉर्म में होगा। क्यों लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि अब तक ये जो क्यूई हीट है ये रिजेक्ट कर दी गई है एटमॉस्फेयर में,
तो अब यहाँ पे अमोनिया आपका लिक्विड स्टेज में चला जाएगा, वाटर नहीं होगा, यहाँ भी वाटर नहीं होगा, बट यहाँ पे अमोनिया एंड वाटर होगा, ठीक है। एंड यहाँ भी अमोनिया एंड वाटर होगा। पंप के इनलेट पे एंड पंप के आउटलेट पे अमोनिया एंड वाटर का स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन होगा। एब्जॉर्बर में वाटर इंट्रोड्यूस हुआ था, बट जनरेटर में ये वाटर अगेन रिजेक्ट हो जाएगा अमोनिया से और एब्जॉर्बर को भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे केवल अमोनिया बचेगा वेपर फॉर्म में। लिक्विड से वेपर फॉर्म में अमोनिया हो गया, क्यों हो गया? ड्यू टू दिस जनरेटर हीट एडिशन, ओके। एंड आफ्टर दैट condenser effect, this your heat rejection, this ammonia in vapor form gonna be converted into this ammonia in liquid form. And after this throttle effect, your ammonia which are going to in form of liquid has reduced its temperature in very drastic manner, ठीक है, जिसके कारण अब ये आपका अमोनिया लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में होने के बाद इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा मिनिमम होगा। तो इस तरीके से इवोपरेटर के इनलेट पे अमोनिया एंट्री करता है, आउटलेट पे अमोनिया आउट होता है। उसके बाद एब्जॉर्बर के इनलेट पे अमोनिया इनलेट होता है एज अ रेफ्रिजरेंट, और एब्जॉर्बर के आउटलेट पे अमोनिया प्लस वाटर का स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन जाता है पंप की तरफ। पंप के बाद जनरेटर में जाके अगेन वाटर फिल्टर होके एब्जॉर्बर में आ जाता है और यहाँ से अगेन ये पूरे के पूरे सिस्टम में इधर अमोनिया फ्लो करता है। तो इतने इस हाफ सेक्शन में पूरा का पूरा अमोनिया फ्लो करता है और इधर स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन फ्लो करता है। इज इट राइट माय डियर फ्रेंड? तो इस वाटर के इंट्रोडक्शन के कारण आपका वर्क इनपुट बहुत कम देना पड़ा, और यहाँ हीट रिजेक्शन भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत कम होगी। यही मेरा फर्स्ट पॉइंट था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीआरएस सिस्टम में इन प्रीवियस लेक्चर, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से पूरे के पूरे आपके जो सिस्टम है, इस सिस्टम में पूरे के पूरे जो रेफ्रिजरेंट के फेजेस हैं और किस तरीके से ये सर्कुलेट करता है, सारे के सारे कंपोनेंट का वर्किंग क्या होता है, वो आप इस लेक्चर में समझ चुके हो। दैट मीन्स इस लेक्चर में आप वीआरएस सिस्टम का साइकिल एक्सप्लेनेशन फुली समझ चुके हो। एंड यहाँ पे क्यों आपने पंप यूज किया, क्यों कंप्रेसर यूज नहीं किया, उसको भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था माय डियर फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वहां पे ये था कि मॉइस्चर, अबाउट द मॉइस्चर बताया था। और इस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम यूज करते हैं दो चीजें, एक एनालाइजर एंड दूसरा रेक्टिफायर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एनालाइजर और रेक्टिफायर कहाँ यूज करते हैं इस साइकिल में देखते हैं। चलिए, इस साइकिल में एनालाइजर एंड रेक्टिफायर कहाँ हम यूज करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, थोड़ा सा हम साफ करते हैं सिस्टम को अपने। चलो यहाँ पे देखो कि योर कंडेंसर दिस इज योर कंडेंसर एंड दिस इज योर व्हाट जनरेटर। जनरेटर से यहाँ सोलर पैनल के कारण माय डियर फ्रेंड्स, जनरेटर में ये है आपका जनरेटर और ये है आपका कंडेंसर। तो जनरेटर में यहाँ सोलर सिस्टम के कारण यहाँ क्यूजी हीट ऐड हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे आपका अमोनिया एंड वाटर था। उसके बाद इस वाटर को हमने एब्जॉर्बर में भेज दिया, बट हियर योर अमोनिया इज नॉट 100% फ्री ऑफ वाटर। यहाँ पे अमोनिया 100% विदाउट वाटर नहीं है, यहाँ पे कुछ वाटर के पार्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वाटर के पार्टिकल को हटाने के लिए, इस मॉइस्चर को हटाने के लिए हमें दो कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ता है। और ये दो कंपोनेंट्स आपके क्या हो सकते हैं? दो कंपोनेंट्स आपके एनालाइजर और रेक्टिफायर हो सकते हैं। तो यू नीड टू इंस्टॉल योर एनालाइजर एंड रेक्टिफायर हियर। दिस इज योर एनालाइजर एंड दिस इज योर रेक्टिफायर, ठीक है ना। दिस इज योर रेक्टिफायर एंड दिस इज योर एनालाइजर। तो एनालाइजर का काम क्या होगा? डिहाइड्रेट करना, 100% वाटर को हटा देना। और रेक्टिफायर नहीं, यहाँ पे एनालाइजर का काम होगा
कि वाटर को डिहाइड्रेट करना, मतलब वाटर को हटाना, बट 100% वाटर कहाँ हटेगा, इस रेक्टिफायर के थ्रू 100% वाटर हट जाएगा। अब यहाँ पे केवल प्योर प्योर NH3 इन वेपर फॉर्म में एंट्री करेगा कंडेंसर में, और यहाँ पे प्योर अमोनिया लिक्विड फॉर्म में एंटर करेगा थ्रॉटल में। थ्रॉटल में ड्रास्टिकली टेम्परेचर के डिक्रीज होने के बावजूद भी आपका प्योर अमोनिया है, वाटर का पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे आइस फॉर्मेशन नहीं होगा और चोकिंग सिस्टम नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके एनालाइजर और रेक्टिफायर कहाँ यूज किए जाते हैं? जनरेटर और कंडेंसर के बीच में। जनरेटर के बगल में एनालाइजर एंड कंडेंसर के बगल में आर। कंडेंसर के लास्ट में क्या लिखा है? आर, कंडेंसर आर। तो कंडेंसर के बगल में आर होगा, मतलब रेक्टिफायर होगा, और जनरेटर के बगल में दूसरा वाला होगा, यानी एनालाइजर होगा। इट्स वेरी सिंपल। So my dear friends, this is your cycle explanation over vapor absorption system. And here I explain you that what is the different phases of your ammonia in different components. And after this strong aqueous solution, after this strong aqueous solution of water, what is the effect is going on? So the main effect is what? You have to able to install a new component at place of compressor named as pump. Okay, my dear friends. So in this way, you have to analyze your cycle, and by this analysis of this cycle, we, you have to calculate your COP value for your VRS system. तो चलिए अब VRS सिस्टम का COP वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो एज पर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब हमें COP वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एज पर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हियर अगर एक कोई सिस्टम है, यहाँ पे एक कोई सिस्टम है, तो पंप का वर्क इनपुट हो रहा है, पंप से वर्क इनपुट हो रहा है, कूलिंग स्पेस जहां मेंटेन हो रहा है वहां पे QE इस सिस्टम में ऐड हो रहा है। अगेन यहाँ जनरेटर से QG ऐड हो रहा है, एंड केवल एक चीज बाहर सिस्टम के जा रही है, वो क्या है? QR। इज इट राइट? और ये कहाँ से जा रही है? कंडेंसर से। यहाँ QR हीट बाहर जा रही है, इवापोरेटर से QE हीट ऐड हो रही है, पंप से वर्क इनपुट भी ऐड हो रहा है, और साथ में ये जो QE है, QG है, ये जनरेटर के थ्रू ये QG ऐड हो रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो जो जो सिस्टम के अंदर आ रहा है उसको आप एक तरफ लिखिए, दैट मीन्स दिस QG प्लस वर्क इनपुट प्लस QE is just equal to what? Is just equal to QR. Okay, is it right? Is it very simple na? Is it very right na? Okay, very good. And one thing is, again one should be noted कि आपके जो एब्जॉर्बर था, आपका जो एब्जॉर्बर था, वहां से QA हीट बाहर भी जा रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था, तो बाहर एक दूसरा और क्या जा रहा है? QA हीट बाहर जा रहा है। ठीक है, एंड माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू टू ओपन फ्लो कंपोनेंट, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ VL DP है, and this VL volume of this liquid is very low, and due to volume of this liquid is very low, so here work input is approximate and assume as 0. Okay, approximately you have to assume as 0. Okay, so you can write this QE value, you can write this QE value plus this QG value is just equal to your QR plus QA, and this is your equation number first. ठीक है, this is your very important equation number first. And my dear friends, what is the standard formula of your COP? Your standard formula of your COP is nothing but desired effect upon input, total input. ठीक है, that means what is your desired effect? Your refrigeration effect. And what is your total input? Your total input is this two. Okay, that means pump work
plus this Qg, and here your pump work is considered as 0 because this is very small work. So what is your refrigeration effect? Your refrigeration effect is nothing but QE, heat extraction. Okay, that means QE divided by what? QG. This is your COP of VARS system. Okay, na? This is your COP of VARS system. So my dear friends, as per this equation, you can replace and find these QE value and QG value. This QE value and QG value you can find easily. Okay, na? So my dear friends, according to Clausius, here we are going to use entropy formula. ठीक है ना? So as per Clausius, आप क्या लिख सकते हो? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dq t is just equal to 0. That means यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? ये QE by TR, ये QE किस टेम्परेचर पे हो रहा है? TR टेम्परेचर पे हो रहा है। QG किस टेम्परेचर पे हो रहा है? TG टेम्परेचर पे हो रहा है। मतलब टेम्परेचर ऑफ व्हाट? टेम्परेचर ऑफ योर जनरेटर। ये QR किस टेम्परेचर पे हो रहा है? ये QR आपका किस टेम्परेचर पे हो रहा है? रिजेक्शन ऑफ हीट ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है? ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे हो रहा है, T नॉट टेम्परेचर पे हो रहा है। ओके, एंड ये QA एब्जॉर्बर का जो हीट है वो किस टेम्परेचर पे हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स? वो भी एम्बिएंट टेम्परेचर पे हो रहा है। इज इट राइट ना? आपने साइकिल में ऑब्जर्व भी किया है कि एम्बिएंट टेम्परेचर पे आपके एब्जॉर्बर से हीट QA बाहर जा रहा है, साथ में एम्बिएंट में दैट मींस एटमॉस्फेयर में QR हीट रिजेक्ट हो रहा है बाय योर कंडेंसर, and by your generator some QG heat gonna be added at TG temperature, TG of your generator, and this TR is rejected from your cooling storage space with respect to this QE heat. Okay, so my dear friends, from equation first, again what you are able to write it? Again you are able to write this QE by TR plus QG by TG is just equal to this QR, that means what is the value of this QR? This QR hit is rejected. ठीक है ना? Okay, so this QR plus QA T naught. Is it right now? Okay, very good. So my dear friends, again we can write this equation just like that कि अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज को लेंगे कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज को कॉमन लेंगे और उसके बाद एक फाइनल इक्वेशन अगेन हम लिखेंगे। तो हमें बाय द सब्स्टिट्यूशन हमें क्या इक्वेशन मिलने वाला है? बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड टेकिंग सम वैल्यू एज अ कॉमन वैल्यू, सो हमें ये मिलने वाला है एंड हियर 1 by T नॉट, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है एंड इस ये वैल्यू जस्ट इक्वल किसके होंगे? ये वैल्यू 1 अपॉन T नॉट के होंगे माइनस 1 अपॉन TG के होंगे। ठीक है, माइनस 1 अपॉन ये TG का होगा। ठीक है, अगेन एट नेक्स्ट पेज। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? अगेन इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं QE in bracket T naught minus TR divided by what? T naught TR, and also this value is just equal to this QG in bracket TG minus T naught and divided by what? TG T naught. Here T naught से T naught cancel out हो जाएगा। ठीक है, एंड COP हमने क्या कैलकुलेट किया था? COP हमने कैलकुलेट किया था QE अपॉन QG कैलकुलेट किया था। तो अगेन QE अपॉन QG की जगह पे आप ये पूरी की पूरी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू को आप जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा? TR मिलेगा डिवाइडेड बाई T नॉट माइनस TR मिलेगा, और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा? मल्टीप्लीकेशन में आपको TG मिलेगा माइनस T नॉट मिलेगा डिवाइडेड बाई TG मिलेगा।
ठीक है my dear friends, this is your nothing but your what, because here lower temperature and here ambient minus lower, that means this is your COP, ये आपका COP बता रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर आपको मिनिमम वैल्यू और नीचे मैक्सिमम वैल्यू दी है, दैट मीन्स यहाँ पे एफिशिएंसी ये बता रही है। मतलब क्या कि COP फॉर योर VARS सिस्टम, VARS system is nothing but multiplication of efficiency of your engine for Carnot and COP for your reverse Carnot. Okay, right? So my dear friends, and this value is nothing but QE by QG. Okay. So my dear friends, your standard formula is this. Your standard formula is this for your VARS system. So for VARS system, the value of COP is TR upon T naught minus TR, and here TG minus T naught by TG, where where T naught is ambient temperature, TG is your generator temperature, generator, this is your TG, ठीक है ना? TG your generator temperature, and what is about your TR? Your TR is what? Your TR is your evaporator temperature. Evaporator temperature, ठीक है ना? साइकिल में आप TL के जगह पे, T लोअर के जगह पे आप TR कर सकते हैं, ठीक है? एंड दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय TL, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से इस T नॉट को आप TH से रिप्रेजेंट करते थे, हायर टेम्परेचर, दैट मीन्स T नॉट, दैट मीन्स एम्बिएंट टेम्परेचर, इस तरीके से करते थे। उसी प्रकार इस T नॉट को आप TR से, दैट मीन्स इवेपोरेटर TR से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयर इज नो एनी इशू। ओके माय डियर फ्रेंड्स, and one point should be noted that your COP, your COP of VARS is very less than your COP of VC system, that means vapor compression refrigeration system। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में जब हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहां पे हम बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे। बट यू शुड बी learn this formula. This formula is very easy and very simple. Here you have to write your COP and efficiency in form of engine and reverse Carnot, ठीक है? Where all these value gonna be mentioned in form of this T naught ambient temperature, TG generator temperature, and TR evaporator temperature. Is it right? So my dear friends, in next lecture we gonna be differentiate our VC cycle with respect to VA cycle, ठीक है? So thank you for watching this video. Have a nice day and all the best.